and parallel. We have already discussed about there is DC circuits, a single circuit, a single loop circuit has been discussed, and that single loop circuit, in the single loop circuit we have considered a single resistor or and a single source of EMF. In this circuit, in this section of the discussion, we are going to discuss about the various combinations of resistors in any electrical circuit or in any DC circuit, more probably DC circuits. Now, here is a diagram which represents two resistors connected in parallel. We have already discussed capacitors connected in parallel. What is the difference between what is the major difference in the resistance, capacitors connected in series and capacitor connected in parallel was that in the parallel combination, all the circuits, all the components are connected to a single or to a point, while in the series combination all the components are connected end to end. Here we can see clearly observe that two resistors are connected between 2 points, two common points. They have common point, a point of connection at point A and at point B. Both the ends of the resistors are connected, so this combination is known as a parallel combination. In the parallel combination, we have already discussed that the charge is different for each component. Let's say for for R1 amount of charge will be different, and for R2 amount of charge will be different. If the amount of charge is different, it is definitely we can say the current is different for the component R1, and for component R2 I will be different, because current or I is the flow of charges. We have also observed that the potential difference across the two components is same, because both of them are connected between the same points. Though both these points, if we say, are connected, if point A and point B are connected with a single battery, then we can say the potential difference across this combination of the resistors is the same, so the potential difference doesn't change, and so we can say the potential difference is same. Now, calculating the value of current through the resistors, we are familiar with the Coulomb's law. Sorry, we are familiar with um, Ohm's law, and Ohm's law states V is equal to IR. So in order to calculate current for resistor R1, we will calculate the value of we will apply Ohm's law, and this is the output equation we got from the by using Ohm's law for the current at resistor R1. This is the equation of current for resistor R2. Now moving on towards the total current. As we know, the total current मस्ट बी शेयर. हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जितना करंट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है पॉइंट ए से, वो टोटल करंट जो है वो आपके पास दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा. एक आपके पास ये थ्रू R1 पास करेगा, और एक करंट जो है वो आपके पास थ्रू R2 पास करेगा. तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि आई टोटल करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू the total current divided between the components of the circuit. I is equal to I1 plus I2. अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब ये जो I है, अगर हम क्या करें अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना जो रेजिस्टर था उसको रिप्लेस कर देते हैं. ये जो सीरीज थी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर था, इसको अगर हम सिंगल एक रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगा, जितना भी करंट आपके पास इस सर्किट में एंटर हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ से गुजरेगा. अब वो इन दो की जगह सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक अदर ये सारा कॉम्बिनेशन रिप्लेस किया और यहाँ एक अदर रजिस्टर लगाया जिसको हमने आर
ई का नाम दिया था। आर ई बेसिकली क्या है, इक्वलेंट रेजिस्टर। तो ये आपके पास अगर ये ब्लैक वाले रेजिस्टर्स नहीं होंगे तो करंट कहाँ से पास करेगा, ये रेड वाले रेजिस्टर के थ्रू, जिसको हमने आर ई का नाम दिया है। तो ये आई जो है बेसिकली टोटल करंट आपके पास इस आर ई से पास कर जाएगा। तो हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो आई है वो, अगर हम इस आर ई की वैल्यू, इस आर ई के अक्रॉस आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो ओहम्स लॉ की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, और वो आपके पास आ रही है I इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आर ई। नाउ अब हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। हमने करंट्स निकाल लिए, करंट की वैल्यूज़ निकाल ली, करंट अक्रॉस हमने आर वन निकाल लिया, करंट अक्रॉस आर टू निकाल लिया, और हमने इक्वलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट निकाल लिया। हम इन तमाम करंट्स की वैल्यूज़ ये वाली इस इक्वेशन में, अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट करते हैं, और जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्म निकल आएगी। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या है, हमने ये बात की है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स है वो सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट सेम है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास क्या निकल आया, ये बेसिकली आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक अदद मैथमेटिकल इक्वेशन निकल आई, जिस इक्वेशन में आपके पास क्या है, वन resistance 1 over RE is equal to 1 over R1 plus R2 square, 1 over R2 R2। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके हम अपनी आर ई की वैल्यू, इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, R1 R2, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में ये आपके पास किसके बराबर है, 1 ओवर आर ई के बराबर है। हम आर ई निकालना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर लेंगे। जब इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आर ई की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि हमारे पास, अभी तो हमने जो इक्वेशन कंसिडर की, जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स देखा है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर में आपके पास सिर्फ टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मौजूद थे। लेकिन अगर आपके पास कहीं पर भी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर टू से ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, और वो इक्वेशन आपके पास ये है। यहाँ पर आप कह सकते हैं n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये सिग्मा एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस, समेशन ऑफ द ऑल द इनवर्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आपके पास जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर आपके पास क्या है, कुछ रेजिस्टर्स इन एंड टू एंड कनेक्टेड है, यहाँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक रेजिस्टर जहाँ एंड हो रहा है वहीं से आपका दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ कंपोनेंट्स जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेजिस्टर्स हैं ये इन सीरीज़ लगे हैं। अच्छा, एक तो ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये सीरीज़ में लगे हैं। एक और भी तरीका हो सकता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगी हैं, उसमें ये यूँ, देन दिस, एंड वी कैन से दिस, और फिर यहाँ पे हम एक अदद बैटरी अगर लगा लेते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये भी बेसिकली आपके पास एक अदद सीरीज़ सर्किट ही है। ये आपके पास पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि अगर ये आपके पास R1 है, R2 है, और ये R3 है, तो R1 जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से R2 आपका स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ R2 एंड हो रहा है वहाँ से आपका R3 स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर ये तीनों मिल रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस कैसे, आपके पास आप सीरीज़ और पैरेलल में डिस्टिंग्विश किस तरह कर सकते हैं। सीरीज़ के अंदर आपके पास ये एंड टू एंड भी जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में क्या है कि एक पॉइंट, दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, सपोज दीज, और ये दो पॉइंट्स पर आपके पास तीन रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, और एक रेजिस्टर ये है। ठीक है जी, और ये पॉइंट्स जो हैं ये फर्दर आपके पास फिर बैटरी से जुड़े हुए हैं। अगर
तो ये आपके पास क्या है, ये एक अदद आपका पैरेलल सर्किट बना हुआ है। तो आपने ध्यान रखना है कि सीरीज़ के अंदर हमारे पास एंड टू एंड कनेक्शन होता है और पैरेलल के अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर कनेक्शन किए जाते हैं। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सर्किट हम डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास क्या है, चार्ज की अमाउंट सेम होगी। अगर चार्ज की अमाउंट किसी सर्किट के अंदर सेम होगी तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, करंट की अमाउंट सेम होगी। तो यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो करंट R1 के अक्रॉस पास कर रहा है वही करंट आपके पास R2 के अक्रॉस पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अब करंट जो है बेसिकली क्या होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट बेसिक अगर एक रेजिस्टर के अंदर से गुजर कर आता है तो उस रेजिस्टर के अंदर से गुजरने के बाद उसके कुछ एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। जब एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज़ कर चुका है। और अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ करने के बाद हम कह सकते हैं कि जब वो आपके पास रेजिस्टर से होता हुआ दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, रेजिस्टर के एक एंड को अगर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे एंड को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए से कैपिटल ए से बी तक आते आते एनर्जी ऑफ द करंट चार्ज कैरियर्स वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स रिड्यूस हो जाएगी तो आपके पास ये जो पॉइंट बी है इसके ऊपर पोटेंशियल जो है उसको हम लो कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल अब यहाँ पर आपके पास एज अ पॉइंट सी, अब अपने रेजिस्टर R2 की बात करते हैं। रेजिस्टर R2 पर आप एक एंड को ए कैपिटल बी का नाम दे देते हैं और दूसरे एंड को आप कैपिटल सी का नाम दे देते हैं। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल लो था। अब जब ये पास करेगा इस रेजिस्टर R2 के थ्रू तो पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल और ज़्यादा लोअर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, आपके पास थ्रू आउट द सर्किट आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं रहती और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज़ नॉट द सेम। अब हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट R1 के अक्रॉस आया आपके पास डेल्टा V1 इज इक्वल टू IR1, R2 के क्रॉस आया आपके पास डेल्टा V2 इज इक्वल टू IR2। अब हमने एक बात पढ़ी हुई है, हमने कहा था कि अगर एक क्लोज सर्किट है तो हमने किरचॉफ का सेकंड रूल पढ़ा था। अब ये सर्किट क्लोज है, कीप इन माइंड आपके पास ये सर्किट ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक अदद बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट। और अगर ये क्लोज सर्किट है तो डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद जो पोटेंशियल्स हैं वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होंगे। हम कह सकते हैं यहाँ से कि टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल्स जो है वो हमारे पास आता है और टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल जो है वो हमारे पास डेल्टा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर आता है। यही बात हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रूव की है जिसमें हमने कहा था कि बैटरी प्रोवाइडिंग द करंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पोटेंशियल्स, जिनको आपने देखा होगा, हमें याद है जब हमने सर्किट एनालिसिस किया था तो उसमें हमने ये बात की थी। तो यहाँ पर भी आपके पास अगर डेल्टा V आपके पास टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है तो ये टोटल पोटेंशियल जो अब आपके पास बराबर आएगा सम ऑफ द पोटेंशियल्स अक्रॉस द रेजिस्टर्स R1 एंड R2। नाउ अगर हम ये पूरा अपना कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर देते एक सिंगल इक्वलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस के साथ आप जब रिप्लेस करेंगे तो आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय योर बैटरी है वो सारा का सारा किससे गुजरेगा, इक्वलेंट रेजिस्टेंस से गुजरेगा। हम इक्वलेंट के लिए दोबारा सर्किट ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास एक अदद इक्वलेंट रेजिस्टेंस और इस इक्वलेंट रेजिस्टेंस के साथ आपने क्या किया हुआ है, एक अदद बैटरी कनेक्ट की हुई है। और ये जो कनेक्टेड आपकी बैटरी है ये for terminal A, this is your terminal B, this is your RE and this battery is providing a potential of delta V। तो अब ये जो डेल्टा V है ये सारा का सारा किधर जाएगा, आपके पास इस RE के अंदर से गुजरेगा। तो आपके पास क्या है, आप डेल्टा V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ RE निकाल सकते हैं और वो आपके पास आई है डेल्टा V इज़ इक्वल टू 1 over delta E is equal to IRE। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास कि आपने अपनी ये जो इक्वेशन थी डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, इसके अंदर आपने डेल्टा V
डेल्टा V1 और डेल्टा V2 की वैल्यूज़ को पुट किया और इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने कहा कि करंट हमारे पास कॉमन है, करंट सेम है थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो करंट कॉमन होने की वजह से हम करंट को जो है वो बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, और करंट को बाहर लिखेंगे और बाहर लिखने के बाद दोनों साइड से वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n मौजूद है, मोर देन 2 रेजिस्टर्स है, तो आपके पास सर्किट की इक्वेशन की क्या फॉर्म आएगी, आपके पास इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ हम सिग्मा लिख लेंगे, और सिग्मा में यहाँ पर सिग्मा n बेसिकली आपके पास क्या है, n कैन बी एनी न्यूमेरिक डिजिट इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। आपके पास कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंसेस आपके पास सर्किट में मौजूद हैं।